हमारा बेंगलोर। बेंगलोर बेंगलोर से आई हो? बेंगलोर से आया है। हाँ, नेचर को, एनवायरनमेंट को देखना आया। इधर देखकर हमें दिल खुश हो गया। वाह वाह। पानी का आवाज सुनना है माइंड को आपको। ओह, पानी आवाज सुनने से आपको धीरे धीरे माइंड में आपको ये क्लियर होते जाएगा। পশ্চিম সিকিমের শান্ত নিরিবিলি গ্রাম হলো দারাপ। পেলিং শহর থেকে মাত্র 6 কিলোমিটার দূরত্বে হওয়ার কারণে এই গ্রামটিতে পর্যটনের এক আকর্ষণীয় বিন্দু হয়ে উঠেছে। এই গ্রামটিতে প্রায় 300 পরিবারের বাস, যাদের বেশিরভাগই লিম্বু সম্প্রদায় মানুষজন। তবে এখানে ভুটিয়া, ছেত্রী, তামাং, রায়, গুরুং এবং লেপচাদের মতো অন্যান্য সম্প্রদায় সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে। শিলিগুড়ি থেকে এই দারাপ গ্রামটির দূরত্ব 132 কিলোমিটার, আর বড় গাড়ির ভাড়া পড়বে 4500 থেকে 5000 টাকা। আমি আছি এখন সিকিমে আমি ওয়েস্ট সিকিম ঘুরছি এবং আমি এখন আছি একটা সুন্দর একটা গ্রাম। এই গ্রামটার নাম হচ্ছে দারাপ ভিলেজ, আর যে হোমস্টেতে আছি তার নাম হচ্ছে দারাগাঁও ভিলেজ রিট্রিট গুরুং হোমস্টে। এই গুরুং হোমস্টে অসাধারণ। আপনাদের টোটাল বৃত্তান্ত এই হোমস্টে জানাবো এবং দেখাবো। চলো যাই। ঢুকতে আপনারা ছোট্ট একটি জলাশয়ের উপরে একটি ছোট্ট সাঁকো দেখতে পাবেন, আর এই জলাশয়ের মধ্যে প্রচুর মাছ দেখতে পাবেন। এইদিকে দেখুন খুব সুন্দরভাবে ফুল দিয়ে সাজানো আছে, মনে হয় একদম প্রকৃতির কোলে আছি একদম। এই হোমস্টে থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না। আপনাদের যদি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে হয় আপনাদের উপরে উঠে যেতে হবে। কিন্তু 5-7 মিনিটের হাঁটা পথে আপনারা কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখতে পাবেন। এই ঘরটির পাশে বনফায়ারের ব্যবস্থা আছে, আপনারা চাইলে এখানে বসে সময় কাটাতে পারবেন। প্রচুর ফুলের গাছ লাগানো আছে। এটা হচ্ছে ডাইনিং রুম। এটা হলো বসার ঘর। সুন্দর একটি ছোট্ট লাইব্রেরি করা আছে, এখান থেকে আপনারা বই নিয়ে পড়তে পারেন। এই হোমস্টের যে রেটিং দেখছি অনেক পুরস্কার পেয়েছে, তাই এখানে দেওয়াল জুড়ে আছে। भाई साहब ये क्या बोलते हैं इसको? बुद्धिस्ट में हमको इसमें इसको एक सुबह में हम इसमें एक आग जलाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक पाइन का लीफ और कुछ हमारा इसको एक लीफ होता है, इसका अभी समझे, इसका जब जलाते हैं तो इसका धुआं बाहर निकला, तो ये निकलने से हमको जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर करते हैं। ठीक है। কিন্তু আজকে রবিবার, আজকে হবে नहीं कर रहा नहीं है, मंडे से हमको फ्राइडे तक करते हैं। वाह, খুব সুন্দর। দেখুন तो यहाँ से पूरा धुआं आ जाता है, इससे पूरा प्यूरिफाई हो जाता है। এই যে হোমস্টেতে আছি, এখানে আমরা রাত্রিবেলা খাবার তৈরি হচ্ছে। আমাদের চিকেন রান্না হচ্ছে। মেন কুকম্যান হাই বলো। এই যে আমাদের আন্টি। পকোড়া হচ্ছে, এখানে চা চলে এসেছে। আমরা সুন্দরভাবে সবাই বসে আছি। দারুণ একটা অভিজ্ঞতা ফ্যামিলি নিয়ে। খুব সুন্দর একটা হোমস্টে। দেখুন কেমন লাগছে আদ্রিক? দেখুন কাঁসার থালায় পরিবেশন হয়েছে। আর এখানে আমাদের ছিল রাতে ভাত, চিকেন, ভাজা, 2 রকম ভাজা আছে, আরো কিছু আসবে হয়তো। আমরা এখন খাওয়া শুরু করবো রাত্রিবেলা এই হোমস্টেতে। সকালে আমাদের রুমের বেলকনি থেকে ভিউটা দেখুন, কি অসাধারণ ভিউ, শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। যে ইউরোপে এই প্রচলনটা আছে যে এই দেখেন যে জলের যে আওয়াজের যে শব্দটা শুনে যে থেরাপি হয় সেটাকে বলা হয় ওয়াটার থেরাপি। এই भाई साहब बोले क्या बोलते हैं? एक्चुअली क्या है ना, हम जब शहर में रहते तो बहुत हल्ला गुल्ला रहते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैंने नाम रखा रिट्रीट। मैं जो रखा ना राणा को रिट्रीट, तो इसका कंसेप्ट मेरा ये। अच्छा अच्छा। अब सुबह 4 बजे उठ जाइए। ये झल के झरना क्या है? झरना का ये कंटिन्यू आते पानी। अच्छा अच्छा। सुबह 4 बजे उठना है आपको, किसी का आवाज नहीं होता है, तो बस आपको यहाँ रहना है। अच्छा अच्छा, ऐसा करना है। हाँ। बस उसके बाद सिर्फ ये पानी का आवाज सुनना है माइंड का। ओह, पानी का आवाज सुनने से आपको धीरे धीरे माइंड में आपको ये क्लियर होते जाएगा। अच्छा बस आपको 15 से आधे घंटा तक ऐसा बैठना है, सिर्फ पानी का साउंड सुनना है आपको। अच्छा, सुनते रहे आराम से। बस उसके बाद ये डीप ब्रीथ कीजिए। बस ऐसा ही करना है 15-20 मिनट। आपको
बहुत आराम मिलेगा आपको। आराम मिलेगा। आप ट्राई कीजिए अभी। हाँ, अभी আমি এখন ওয়াটার থেরাপি করছি। डीप ब्रेथ कीजिए, लंबा लंबा। এটা আলাদা একটা অনুভূতি। আমাদের এই হোমস্টেতে সকালে যে খাবার দিয়েছে ব্রেকফাস্টে, তাতে দেখছি সেখানে লুচি আছে, রুটিও আছে, রুটি আনবে, আর এখানে ছোলার ঘুগনি আছে, আর আচার আছে, একটা চাটনি টাইপের কিছু আছে। কেমন টেস্ট? কেমন? ভালো ভালো রে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। আচ্ছা ভাস্কর বলো কেমন লাগছে? অসাধারণ অনুভূতি, একটা অসাধারণ স্বাদ অনুভূতি এবং প্রকৃতির একটা অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে যেতে চলছি। যেতে যাওয়ার ইচ্ছা একেবারেই চাইছে না। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো, খুব ভালো লাগছে। নতুন সদস্য চাঁদ্রিক বলো। এই হোমস্টে ছোট্ট মিনি স্টোর, এখান থেকে আপনারা চাইলে কিছু বাড়ির জন্য নিয়েও যেতে পারেন। দেখুন कुछ ये हैंडीक्राफ्ट है, ये बैग्स वगैरह है, कुछ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वगैरह है। वो बैग कितने का है? बैग सब 300 रुपए का है। 300 रुपए। आप लोग का घर कहाँ पर है? हमारा बेंगलोर। बेंगलोर? बेंगलोर से आई हो? हम बेंगलोर से आए हैं। हाँ, नेचर को, एनवायरनमेंट को देखना आया। इधर देखकर हमें दिल खुश हो गया। वाह 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 वाह। एनवायरनमेंट भी ऐसा रखता है। हमारा बेंगलोर में हमारा दूसरे सिटीज है, बहुत हाँ, सिटी गए हैं। आपका सबका घर बेंगलोर में है? कैसा, सबका अच्छा लगा? बहुत बढ़िया है। ऑनर का व्यवहार कैसा है? वो तो बढ़िया है। बढ़िया है। खाना पीना कैसा है? खाना तो घर का ही, घर का ही खाना है, घर का खाना। एक बात है, हाँ बोलिए। इसके पहले 2 महीने पहले मेरा बेटा बहू आए थे। हाँ, हाँ। उन्होंने इतना रेकमेंड किया। हाँ, हाँ। नहीं, हम सबके दिल के लिए इधर ही रहना है, उसको बोल दिया है। আচ্ছা। बहुत अच्छा लगा। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অনারের সাথে আমরা কথা বলবো এবং এই হোমস্টের টোটাল বৃত্তান্ত আমরা জানবো। ये होमस्टे से पहले मैं आपको गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये हमारा जो गांव है पेलिंग यहाँ से 6 किलोमीटर आगे। तो पहले आप जब एनजीपी से या एयरपोर्ट से आते तो पहले आप पेलिंग आना है। तो पेलिंग से आपको 6 किलोमीटर आगे हमारा एक छोटा सा गांव, इसका नाम है दराब। दाराब। दराब के अंदर में बहुत सा होमस्टे है। अभी ये मेरा होमस्टे का नाम है डारागोरिटी गुरुंग होमस्टे। कितने साल हुआ है? ये मैंने 2008 से स्टार्ट किया है, अभी 15-16 साल हो गया है। अच्छा, तो मेरा फैमिली रन है, ये मेरा वाइफ घर में है, मेरा बेटा बेटी और मेरे भांजी है, और मैं खुद हूँ, और आप लोग जो भी के साथ আচ্ছা, हैं, वो भी ऐसे আমরাও কিন্তু দেখলাম এরা সবাই প্রত্যেকে পরিবারের লোকরাই সার্ভ করবে এবং আপনাদের পরিষেবা দেবে। গাড়ি का व्यवस्था कर देती हो क्या? हाँ जी, आपको जैसे एनजीपी से आना हुआ या एयरपोर्ट से आना है, वो भी हम पिकअप भी करा देते हैं, और यहाँ पर जो साइड सीन वगैरह होता है जैसे कैंप वगैरह। आपका फूडिंग लॉजिंग चार्ज कितना है? वैसे तो आपको सीजन में आया तो आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा। महंगा तो नहीं है, एक आज का डेट में जो जिसका रेट है ना, जैसे महंगाई है, उसके पास एक ही है, सिंपल सा है। आपको फूडिंग लॉजिंग ब्रेकफास्ट और डिनर कराते हैं हम, ये लंच नहीं कराते क्योंकि हमारा घर का आदमी है। तो ब्रेकफास्ट डिनर ब्रेकफास्ट स्नैक्स नहीं होता है? स्नैक्स नहीं कराते। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारा क्या ना फैमिली है, दिन में हमारा दूसरा काम होता है, इवनिंग में हमारा दूसरा काम होता है, तो हम करने पड़ते, हम सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर कराते हैं। हाँ, कितने में? तो इसके लिए आपको एक आदमी रहे तो आपको 1800 है, एक रूम के साथ। तो 2 जन रहना है तो आपको 3000 लगेगा। 3000, ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा पर्सन आता है तो उसके फिर 900 रुपये लगेगा। तो 3 आदमी रहना है तो 3900 रुपये, 2 आदमी रहना है तो 3000, और एक आदमी रहना है तो 1800 रुपये लगेगा। अच्छा अच्छा। इसमें आपको ब्रेकफास्ट डिनर एंड टी एंड कॉफी 24 आवर आपको फ्री है, एंड वाईफाई भी आपको फ्री है। वाईफाई भी फ्री है। ठीक है। और आपका कितना रूम है आपके पास? मेरे पास ऐसा रूम तो 10-12 रूम है, लेकिन मैं एक टाइम में ऐसा ही 7-8 रूम चलाता हूँ। ये फैमिली रहना है हमारा, ज्यादा टूरिस्ट रख के हमको सर्विस नहीं दे पाते। ठीक है, 3 फैमिली में जितना भी लोग हैं हम कर सकते हैं, और ऐसा हम अभी 7-8 रूम चलाते हैं। हम वैसे 5 रूम ऐसे चलाते हैं, सब थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो 7-8 रूम चलाते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो आपको ये मिनरल वाटर का बोतल लेकर मत आइए। अच्छा, एक लेना है तो आपको यहाँ पानी रिफिल करके आप खा सकते हैं, और अच्छा, ले जा सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। 24 आवर है। इसमें 2 रूम है, हाँ, और ये इसमें 2 रूम है, और इसमें 6 वो रूम है। কটেজ वाला रूम है? কটেজ वाला रूम है ये। হ্যাঁ, নতুন বানিয়েছে বিল্ডিং হাউস। আমরা আছি বিল্ডিং হাউস, আমাদের বন্ধুরা আছে এইখানে পরিবার নিয়ে স্টোন হাউসে।
बहुत से लोगों का ऐसा डिमांड है कि थोड़ा सुबह मॉर्निंग में थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन हॉल। मेडिटेशन हॉल ऊपर में मैंने खुदा है, उसमें वाह, बहुत अच्छा है। सिक्किम में शायद होम स्टे में नहीं मिलेगा कहीं पर, मैं भी ये फर्स्ट टाइम होगा शायद। हाँ, तो आके आके मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग, अच्छा, थोड़ा अच्छा। योगा वगैरह कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। शांत जगह है, आप मॉर्निंग में यहाँ आकर कर सकते हैं एकदम ऑर्गेनिक। हमारे यहाँ दूसरा कुछ नहीं, सब गाँव से आते हाँ। हैं एकदम ऑर्गेनिक, बस हम नमक बाहर से लाता है। नमक बार से। ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। थैंक यू। আমরা এখন এই হোমস্টে রুম রিভিউ করব, চলো দেখি। ঢুকতেই সুসজ্জিত বেড দেখুন, টেবিল দেওয়া আছে, এখানে বসার জায়গা আছে, জানলা সরালেও আপনারা ভিউ পেয়ে যাবেন, খুব সুন্দর ভিউ পাবেন। এইদিকে বসার একটা টেবিল চেয়ার দেওয়া আছে, একটা আপনার সেপারেট বেলকনি, বাইরে বেরোলে দারুণ ভিউ পেয়ে যাবেন। দেখুন বাথরুমটা দেখুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একদম বাথরুম, কোমোড আছে, গিজার আছে, একটা বেসিন আছে, একটা মিরর দেওয়া আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম। এইরকম ভিডিও পেতে আমার চ্যানেল অর্থাৎ ভোরের আলো ট্রাভেল গাইড চ্যানেলকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হচ্ছে নতুন এক ভিডিওতে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।